یہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، جس نے پچھلے کچھ دنوں سے پوری کی پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ تہلکہ مچے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی دنیا کا وہ اکلوتا پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر آج کے دور میں قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا پر راج کرنا، اور جس کو بلاک کر دینے مطلب کہ جس کو بند کر دینے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو اکنامیکلی تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دینا۔ اور آج کی ڈیٹ میں ایران بالکل ایسا ہی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکہ جیسا اس کا دشمن کہ جو اس سے کئی سو گنا زیادہ طاقتور ہے، وہ بھی پوری طریقے سے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اب ساتھیوں، سمندر کے اس چھوٹے سے پوائنٹ میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ پوری کی پوری دنیا اس پر اتنی زیادہ ڈیپینڈ ہے، اور آخر ایران نے اس کو بلاک کرنے کے لیے ایسا کون سا طریقہ اپنایا ہے کہ امریکہ جیسا دیش کہ جو دنیا میں سپر پاور مانا جاتا ہے، وہ بھی کچھ کر پانے میں پوری طریقے سے اسفل نظر آ رہا ہے۔ بلکہ امریکہ تو امریکہ، ایون جو باقی بھی بڑی بڑی ویسٹرن پاورز ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لگاتار مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی فوج لے کر اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب جانے سے گھبرا رہی ہیں۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو ان ساری ہی چیزوں کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے ذرا یہی جان لیتے ہیں کہ آخر یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے کیا۔ تو دوستو، معاملہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں لگ بھگ 70% کے قریب تو صرف اور صرف سمندر ہی موجود ہے، اور آج جب دنیا اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے تو آپ لوگ بھلے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ آسمان میں اڑ کر ہوائی جہاز سے جاتے ہوں، مگر دنیا کی جو تجارت ہے، دنیا کا جو ٹریڈ ہے، وہ آج بھی بالکل ویسے ہی سمندری جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جیسے صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ دنیا کا لگ بھگ 80% ٹریڈ آج بھی سمندری جہازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اسی لیے کچھ رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ہر وقت لگ بھگ 50,000 ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ جو ان سمندر کو پار کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ ان بڑے بڑے سمندروں کو پار کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، بلکہ قدرتی طور پر بھی ان بڑے بڑے دکھنے والے سمندروں کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جن کو اسٹریٹس کہا جاتا ہے، یا جن کو آپ چوک پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جس چھوٹی سی جگہ سے گزرتے وقت اگر یہ جہاز ہلکا سا ادھر ادھر ہو کر پھنس گیا، یا پھر کسی اور وجہ سے بھی یہ اسٹریٹ بلاک ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ فوراً پوری کی پوری دنیا کی ہی اکانومی ہل جائے گی۔ اس کا ایک بڑا ثبوت 2021 میں بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ جب ایک کارگو شپ سوئس کینال کے اندر لگ بھگ 6 دن کے لیے پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو لگ بھگ $10 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اب ہماری دنیا کے سمندر کے اندر یہ جو اسٹریٹس ہیں، مطلب کہ چوک پوائنٹس ہیں، یہ کوئی ایک دو جگہ نہیں ہیں، بلکہ کئی جگہ ہیں۔ مطلب امریکہ کے نیچے بھی دکھائی دے گا آپ کو، اسپین کے نیچے بھی نظر آئے گا، انڈونیشیا اور ملیشیا والی سائڈ میں بھی نظر آئے گا، اس کے علاوہ ٹرکی اور دنیا کے کچھ اور بھی خاص علاقوں میں آپ لوگوں کو اس طرح کا یہ اسٹریٹ، اس طرح کا یہ چوک پوائنٹ نظر آئے گا۔ مگر ان تمام اسٹریٹس میں سے کوئی بھی اسٹریٹ اتنی زیادہ اہم اور اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ جتنی اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ جی ہاں، وہی اسٹریٹ آف ہارمز کے جو بالکل ایران کے پاس موجود ہے۔ اب اس اسٹریٹ کے حد سے زیادہ اہم ہونے کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ یہ باقی دنیا کے لیے پرشین گلف میں جانے کا، یا پرشین گلف سے باقی دنیا کی طرف آنے کا اکلوتا راستہ ہے۔ جی ہاں، وہی پرشین گلف کہ جس کے ساتھ دنیا کے لگ بھگ 8 دیش اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں، جس میں کویت ہے، عراق ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، قطر ہے، UAE ہے، عمان ہے، اور ہاں سب سے بڑا دیش ایران ہے۔ اب ان 8 دیشوں کا پرشین گلف کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرنا، اور پھر اسی پرشین گلف کا اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے سے باقی دنیا سے کنیکٹ ہونا اتنا زیادہ اہم نہ ہوتا اگر اس کہانی میں تیل اور گیس کی انٹری نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ تیل کے لیے ہی مشہور ہے، تیل کا گڑھ مانا جاتا ہے، اور یہ جو 8 کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بتایا، ان کے پاس تو اتنا زیادہ تیل موجود ہے کہ دنیا کے باقی کسی بھی علاقے میں ایک ہی جگہ پر اتنا زیادہ تیل ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہماری پوری ہی دنیا میں جتنا بھی تیل موجود ہے، اس کا 50% کے قریب تیل اسی جگہ پر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جسے بھی یہ تیل چاہیے تو وہ تیل اسی اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے سے ہی نکل کر باہر آئے گا۔ صرف تیل ہی کیوں، بلکہ دنیا کی 40 سے 45% کے قریب گیس بھی یہیں پر موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تیل کی طرح گیس کو بھی اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو تیل گیس ہے، یہ آج
आज के दौर में हमारी दुनिया के लिए कितना ज्यादा अहम है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे सड़कों पर चलने वाली अलग अलग तरह की गाड़ियां हों, आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन हो, बिजली बनाने वाले प्लांट्स हों, ये सारी की सारी चीजें ही एनर्जी पर डिपेंड हैं। मतलब आज की हमारी ये जो नई दुनिया है इसका पूरा पहिया ही तेल और गैस के सहारे से चलता है। अब अगर बात करें दुनिया के उन देशों की कि जो इस स्ट्रेट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड हैं, मतलब जिनका तेल और गैस सबसे ज्यादा इस इलाके से निकल कर आता है, तो उनमें पहले नंबर पर नाम तो चाइना का आता है, जो दुनिया की न सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है बल्कि पेट्रोलियम को इंपोर्ट करने के मामले में टॉप पर आता है। और ये अपना लगभग 45% के करीब पेट्रोलियम इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। इसके बाद इंडिया का नाम आता है कि जिसका लगभग 60 से 70% ऑयल यहीं से आता है, जबकि 40 से 50% के करीब गैस भी इसी रास्ते से होकर आती है। इसके बाद जापान का नाम आता है, साउथ कोरिया का नाम आता है, मतलब ज्यादातर एशिया के देश ही हैं। हालांकि यहाँ पर स्पेन, इटली और ग्रीस जैसे कुछ यूरोपियन देश भी हैं कि जहाँ पर तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। तो अब मतलब ये निकला कि क्योंकि ये खास इलाका लगभग दुनिया की आधी एनर्जी रखता है, तो इसीलिए अगर इस रास्ते पर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो जहाँ जहाँ पर ये तेल और गैस जा रहा है वहाँ पर तो फौरन उथल पुथल शुरू हो ही जाएगी। बाकी ये जो सारे देश हैं कि जहाँ से ये तेल और गैस जा रहा है, इनकी भी जो आमदनी है वो तुरंत रुक जाएगी और फिर इससे होगा ये कि इनमें से ज्यादातर देशों की तो इकोनॉमी फौरन कोलैप्स करने लगेगी। और याद रहे कि ये ज्यादातर वो देश हैं कि जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाते हैं, जिसका अल्टीमेट नतीजा होगा पूरी की पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी का हिल जाना। अब क्योंकि पिछले कई दशकों से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में ही ये माना जाता रहा है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा कंट्रोल ईरान का ही है, तो इसीलिए अगर कभी भी अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई मुसीबत आई तो वो अमेरिका और बाकी वेस्टर्न पावर्स को झुकाने के लिए अपने इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये कि किसी बड़ी मुसीबत की सूरत में ईरान इसको ब्लॉक कर देगा। और इसी चीज को ही नजर में रखते हुए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी जारी रखी थी। मतलब आसपास के जितने भी देश हैं, जितने भी इलाके हैं, उन सभी में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए थे, फौजी अड्डे बनाए थे, ताकि अगर कभी भी ऐसा वक्त आए कि ईरान इसको ब्लॉक करने की कोशिश करे तो बिल्कुल पास ही में मौजूद इन्हीं मिलिट्री अड्डों से ईरान को ऐसा करने से पहले ही रोक दिया जाए। मगर साथियों 2026 में जब वाकई वो वक्त आया तो ईरान ने न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके दिखाया, बल्कि ये जितने भी अड्डे इस काम को रोकने के लिए बनाए गए थे उन पर भी ताबड़तोड़ लगातार हमले करते हुए उनको तबाह बर्बाद कर दिया और पूरी तरीके से यूजलेस कर दिया। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि आखिर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया कैसे, मतलब कौन सा तरीका अपनाया है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो पहले ही देखने में काफी पतली महसूस होती है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। मगर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जिस जगह से शिप निकलते हैं, जिस जगह से जहाज निकलते हैं, वो कोई 35-40 किलोमीटर का इलाका नहीं है, बल्कि उस खास इलाके की चौड़ाई सिर्फ 2 से 3 या फिर 4 किलोमीटर के करीब है। मतलब ये कि दुनिया के नक्शे में या खबरों वगैरह में आपको ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार नजर आती है, इस पूरे इलाके में से भी जहाज नहीं निकलते हैं, बल्कि इसके बीच में भी सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का इलाका ही ऐसा है कि जहां से ये जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं। और यही वो चीज है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहाजों के लिए खतरनाक बनाती है। मतलब ये कि वॉर के अलावा भी जो नॉर्मल डेज हैं उनमें भी जब जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो वो गुजरते वक्त ज्यादा कुछ हरकत नहीं कर सकते हैं। और रही बात ईरान की, तो लोगों को आमतौर पर लगता है कि क्योंकि ईरान के पास बहुत बड़ा बॉर्डर है, उसकी जमीन हद से ज्यादा बड़ी है और इसीलिए शायद उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रहता है। हालांकि दोस्तों ये भी सच है, मगर पूरी तरीके से सच नहीं है। बल्कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आइलैंड्स हैं, वो टापू हैं कि जो पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, ईरान और बाकी अरब देशों के बीच में ये जो पतला सा समुद्र मौजूद है कि जिसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है, यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे छोटे बड़े टापू मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर टापू ईरान के ही हैं। अब इनमें से कुछ टापू तो ऐसे हैं कि जिनको ईरान की तरफ से अपनी ऑयल फैसिलिटीज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ को किसी और काम के लिए, जबकि 2-3 ऐसे भी हैं कि जिनको सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 1-2 टापू को तो इंटरनेशनल मीडिया में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तक
कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से ईरान ने अपनी मेन लैंड पर अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बना रखी हैं और बाकी डिफेंस का पूरा सिस्टम बना रखा है, बिल्कुल उसी तरह का उसने समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस आइलैंड पर भी बना रखा है। किसी टापू पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, तो किसी पर ड्रोन्स या फिर बाकी हथियारों को लॉन्च करने की फैसिलिटी, तो कहीं पर IRGC का डायरेक्ट बाकी कामों के लिए मिलिट्री बेस मौजूद है। और यही वो आइलैंड्स हैं कि जो पर्शियन गल्फ और आसपास के पूरे इलाके में ईरान की ताकत को डबल कर देते हैं। और मौजूदा वक्त में भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने में, उसको बंद करने में ये आइलैंड्स एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात ये भी है कि जब भी मीडिया में ये कहा जाता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने फिजिकली वहाँ पर कोई दीवार खड़ी कर दी है या अपने शिप्स वगैरह लगा दिए हैं, नहीं, बल्कि उसको इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐलान करने की जरूरत होती है। उसने एक बार ऐलान कर दिया कि अब से ये बंद है, कोई भी जहाज बिना परमिशन यहाँ से नहीं निकलेगा। उसके बाद अगर किसी ने भी निकलने की कोशिश की तो वो उस पर अटैक करता है। अटैक करने के लिए वो या तो आमने सामने से एंटी शिप मिसाइल या ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है, या माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, या पानी के अंदर से जो ड्रोन हमला करते हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। और बाकी जहाँ तक सवाल लोकेशन का है, तो जैसा कि हमने बताया कि वो ये काम मेनलैंड से भी कर सकता है, जबकि बीचों बीच मौजूद ये जो अलग अलग टापू हैं ये तो उसकी है ही सबसे बड़ी ताकत। तो अब जैसे ही एक दो जहाज टारगेट हो जाते हैं तो बाकी के जहाज रिस्क को देखते हुए आसपास आने की हिम्मत करते ही नहीं हैं, और बाकी बची कुची कसर इंश्योरेंस कंपनीज पूरी कर देती हैं, क्योंकि वो ऐसे रिस्क को देखते हुए या तो इंश्योरेंस हद से ज्यादा महंगा कर देती हैं या फिर देना ही बंद कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कि जिसको फिजिकली तो ब्लॉक नहीं किया गया होता है, लेकिन वो ब्लॉक हो चुकी होती है। और मौजूदा वक्त में बिल्कुल यही हुआ है, और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि ताकत के जरिए से तो अमेरिका ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं खुलवा सकता है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने के लिए सिर्फ एक अटैक करने की जरूरत है। वो अटैक चाहे वो कितने भी दिनों के गैप से करे, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका को इसको खोलना है तो उसको ईरान को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, मतलब इतना नीचे ले जाना पड़ेगा कि ईरान के पास इतनी ताकत भी ना बचे कि वो किसी एक शिप पर भी कभी भी अटैक कर सके। और जाहिर सी बात है ऐसा होना तो अभी दूर दूर तक नामुमकिन लगता है। तो ये थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी कहानी। बाकी आखिर में जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर आजकल हम ईरान वॉर की अपडेट दे रहे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।